Good morning, students. Let us start with the remaining instructions of 8086. And in previous lecture, we studied data transfer instructions. In data transfer instruction, we studied move instruction, which we have already discussed in 8085. There is a difference in syntax only, but the instruction is same. The mnemonic of the instruction is same, MOV. But the difference here is that we can operate on 8-bit data or 16-bit data. And I'm repeatedly saying this कि हम 8-bit and 16-bit दोनों ही डेटा पे ऑपरेट कर सकते हैं. तो keep this thing in your mind कि हम जब भी 8086 की इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो we have option of 8-bit or 16-bit. And only the change in the instruction will be कि we have to mention 8-bit data and 8-bit register only, or 16-bit data, 16-bit register. The instruction will automatically executed as per the data given in the instruction. तो data transfer में हम लोगों ने सबसे पहला पार्ट जो था वो मूव का स्टडी किया, मूव इंस्ट्रक्शंस. देन फिर जो सेकंड पार्ट है डेटा ट्रांसफर में ही, that is load, store और exchange. So ये जो this type of instruction are also categorized under data transfer instructions. In this case, in this categorization, we will study instructions which are related to loading data or storing data or exchanging between registers. So ultimately, again, in these instructions also the data transfer is being done. That is why these are also categorized under data transfer instructions. So like जैसे हमने LDS पढ़ा, LES पढ़ा, LEA पढ़ा, तो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस में हम अगेन डेटा को ही ट्रांसफर कर रहे थे और हमने इनको डिटेल में स्टडी किया कि हम किस तरह से कब कौन सा क्या डेटा हम यहाँ पे ट्रांसफर करें. और when we are talking about load or store instruction, you can see the detailing of instruction that we are using this instruction against the segment register. Like LDS is for data segment register, and you can easily identify that here DS is already written. In the same way, ES is being written here. It means it is from extra segment register. Then फिर LEA means ये extra segment के लिए. तो इस तरह से in each and every instruction segment has been already described in the mnemonic. So you can easily identify कि हम कौन से segment की बात कर रहे हैं और उसी segment से हम फिर data transfer यहाँ पर perform कर रहे हैं. देन फिर दो इंस्ट्रक्शंस और हैं यहाँ पे, LHF एंड SAHF. ये दो इंस्ट्रक्शन अगेन डेटा ट्रांसफर के लिए ही हैं. अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस इंस्ट्रक्शन में हमें और कुछ भी स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक जैसे ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ. तो this instruction when this instruction is executed, the lower order 8 bits of flag register, यानी कि हम जो फ्लैग रजिस्टर की बात कर रहे हैं, अगेन फ्लैग रजिस्टर इज ऑफ 16 बिट. तो अगर हम लोअर ऑर्डर की बात कर रहे हैं 8 बिट्स की, तो वी आर डिवाइडिंग द होल डेटा इनटू टू पार्ट्स. वन इज द लोअर पार्ट एंड सेकंड इज द हायर पार्ट. So this lower 8 bits are moved when this instruction is executed. And destination क्या है इसका? Destination is the higher part of accumulator, because we already studied कि हमारे पास में जो AX accumulator register है, it has two parts, the higher part of accumulator and lower part of accumulator. So the lower part of the flags is moved to the higher part of the accumulator. That's it. And when SAHF instruction is executed, the reverse operation of this instruction is performed, means the data of this AH is moved to the lower of the
flags, lower 8 bits of the flag. तो ये इंस्ट्रक्शंस तो खैर हम लोगों ने स्टडी कर ली थी, बट एक ब्रीफ रिवीजन हम आप लोगों को दे रहे थे। सिमिलरली हमारे पास में अदर इंस्ट्रक्शंस हैं, XLAT B, फिर XCHG टू एक्सचेंज रजिस्टर। अगेन इन दिस इंस्ट्रक्शन केवल एक रजिस्टर को यहाँ पर स्पेसिफाई किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि एक ही रजिस्टर स्पेसिफाई किया जा रहा है, इट मींस द सेकंड रजिस्टर इज फिक्स एंड दैट इज accumulator. मीन्स कि वी विल स्पेसिफाई द 16 बिट रजिस्टर हेयर, लाइक हम यहाँ पर dx लिख देते हैं, तो द कंटेंट ऑफ dx विल बी एक्सचेंज विद ax रजिस्टर। तो हमें केवल उस एक रजिस्टर को यहाँ स्पेसिफाई करना है, सेकंड ऑलवेज फिक्स है कि वो एक्यूमुलेटर होगा। देन फिर पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस भी हम लोगों ने स्टडी की डेटा ट्रांसफर में ही। दीज इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो अ पार्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, बिकॉज इसमें भी हम डेटा ट्रांसफर ही कर रहे हैं। एंड व्हेन हम पुश इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो पुश एंड पॉप, दीज टू इंस्ट्रक्शंस आर ऑलवेज रिलेटेड टू द स्टैक। एंड जब हम स्टैक की बात करते हैं तो डेटा ट्रांसफर ऑलवेज टॉप ऑफ स्टैक से परफॉर्म होता है। मीन्स कि जब हम पुश कर रहे हैं तो जो भी रजिस्टर यहाँ पर गिवन होगा, इस रजिस्टर का डेटा टॉप ऑफ स्टैक में सेंड किया जाएगा। इसी तरह से जब हम इसका जस्ट अपोजिट पीओपी आरईजी करेंगे तो क्या होगा, टॉप 2 बाइट्स ऑफ द स्टैक आर मूव टू दिस स्पेसिफाइड 16 बिट रजिस्टर। तो जो फंक्शन यहाँ परफॉर्म हो रहा है, जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। इन द सेम वे other 3 instructions are also here, and in the same way pop instruction will do the opposite of these instructions also. स्टेटमेंट सेम रहेगा, बस पुश की जगह हम पॉप लिख देंगे, pop, and rest complete syntax will be same. तो ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर्स। देन हम लोगों ने इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन स्टडी की। whenever we need data from input and output port, we use instructions in and out. So when we have to take input from input port, we need to use these two instructions. If we are specifying the port address directly, we will use this instruction. If we are having the port address in saved in this register, then we will use dx here. Otherwise everything is same, but difference from the 8085 is that we need to specify accumulator here, because we can either use 8 bit of accumulator or 16 bit accumulator. Just a minute student, wait करिएगा। तो ये हमारे पास में 2 इंस्ट्रक्शंस हो गई इनके लिए। अब सिमिलरली आउट की इंस्ट्रक्शंस भी हैं एंड सेम सिंटैक्स है, बस इनकी जगह को पर हम आउट को रिप्लेस कर देंगे। We will place out port AC, out DX AC. In this instruction, we are directly writing the a port address, and in this instruction, we are having port address stored in DX register. नेक्स्ट फिर हम लोगों ने
अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस भी स्टडी करी थी। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस और ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम एज 8085। सिंटैक्स में अ लिटिल बिट डिफरेंस है, एंड as far as we are talking about addition and subtraction, it is almost same as 8085. But since 8086 arithmetic instructions also include division and multiplication, so it is extra from 8085 because 8085 में हम लोगों ने multiplication and division instruction study नहीं करी थी, क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का कोई प्रोविजन नहीं था। बट इन दिस 8086 देयर इज अ प्रोविजन कि वी कैन डू multiplication of two data or division of two data. So let us see a brief of addition and subtraction also, then we'll go to multiplication and division. So whenever we perform addition instruction, अगर आप इसे 8085 से कंपेयर करेंगे तो we always use लाइक अगर किसी रजिस्टर को हम इसके डेटा को हमें ऐड करना है तो वी यूज ऐड एंड स्पेस देके हम लिखते थे रजिस्टर, यानी आर जो भी रजिस्टर होता था, बी सी डी ई कोई भी लिख सकते। तो व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन विल डू, दिस इंस्ट्रक्शन विल ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर इनटू एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। बट इन 8086 एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम 8 बिट का भी एडिशन कर सकते हैं, 16 बिट का भी कर सकते हैं। तो इन दिस केस वी नीड टू स्पेसिफाई एक्यूमुलेटर है, दैट इज वाई यहाँ पर सिंटैक्स चेंज है एंड ऐड के बाद में एक्यूमुलेटर को भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं एंड स्पेस देके फिर उसके बाद में आइदर हमारे पास में इमीडिएट डेटा है या फिर हम रजिस्टर भी लिख सकते हैं। एंड there is one more advancement in 8086 that in case of 8085 we can always perform addition with accumulator only, but here we can specify memory or register also, and we can do addition between registers, या between register and memory or between register and immediate data also. ये एक एक्स्ट्रा फीचर 8086 में है एंड सिंटैक्स इज सेम कि हम इन दोनों डेटा को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। लाइक इस इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें आइदर 8 बिट या 16 बिट का डेटा गिवन होगा एंड अकॉर्डिंगली वी विल राइट एक्यूमुलेटर ऑल्सो कि अगर हमें 8 बिट दिया है तो वी विल राइट AL, और अगर हमें 16 बिट दिया है तो वी विल राइट AX। रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम एज 8085। फ्लैग्स के केस में भी वही है कि सारे फ्लैग्स अफेक्ट होंगे, बट here because we are having only 6 conditional flags which are result dependent, result oriented, so all these 6 flags will be affected. That is why देखिए next instruction में लिखा है all conditional flags are affected. These are the all conditional flags in 8086. rest जो है that are control flags and which are and that will be operated by programmer or user only. तो दैट इज वाई वो इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंट नहीं है कि इंस्ट्रक्शन जैसे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है तो उनके एग्जीक्यूशन से उन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो ओनली द फ्लैग्स विच विल बी अफेक्टेड आर गिवन हियर, ओवरफ्लो, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग, ये फ्लैग्स यहाँ पर अफेक्ट होंगे। एंड एडिशन जो परफॉर्म कर रहे हैं एक्यूमुलेटर से इमीडिएट डेटा में भी हो सकता है, मेमोरी या रजिस्टर का इमीडिएट डेटा से हो सकता है, या मेमोरी और रजिस्टर का आपस में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, रजिस्टर टू रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर, रजिस्टर मेमोरी। देन हमने 8085 में विद कैरी भी एडिशन किया था, तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि हम क्या करेंगे, हम इस ऐड की जगह पर क्या लिख देंगे, ADC in all these 3 instructions, and these 3 instruction will be performed along with carry। देखिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन है, लाइक जैसे हमने फर्स्ट लिखा ADC फिर AC कॉमा डेटा, तो यू कैन कंपेयर दिस इंस्ट्रक्शन एंड दिस इंस्ट्रक्शन दैट बोथ आर सेम, बस ऐड की जगह ADC लिखा हुआ है। अब नाउ व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन विल डू, दिस इंस्ट्रक्शन विल ऐड दिस इमीडिएट डेटा विद कैरी टू एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर भी ऐड हो रहा है, कैरी भी ऐड हो रहा है एंड इमीडिएट डेटा भी ऐड हो रहा है, तो ये विद कैरी इंस्ट्रक्शन हो गया।
एंड सिमिलरली हम यहाँ पर एडीसी लिखेंगे, यहाँ पे एडीसी एडीसी लिखेंगे, एंड ये सारे ऑपरेशन विद कैरी परफॉर्म हो जाएंगे। नाउ अब ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हमने ऐड और एडीसी की पढ़ी है, इन सभी में अगर हम इस ऐड को सब्ट्रैक्ट से यानी एसयूबी से रिप्लेस कर दे तो ये सारी इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्शन के लिए परफॉर्म हो जाएंगी। ऐसे ही जो इंस्ट्रक्शंस हमने एडीसी के लिए यूज की यानी अलोंग विद कैरी जो ऐड कर रहे थे, वहां पर हम अगर एस बी बी लिख देंगे तो ये सब्ट्रैक्शन विद बोरो हो जाएगा। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिमिलर हैं, देयर इज नो डिफरेंस, एंड यू कैन easily identify this by checking all the instruction of subtraction। आप देखिए, ये सिंटैक्स देखिए, ये सिंटैक्स देखिए और ये सिंटैक्स देखिए, ऑल दीज थ्री सिंटैक्सेस आर सेम एज जो हम लोगों ने ऐड में स्टडी किए। एंड सिमिलरली जो नेक्स्ट थ्री इंस्ट्रक्शंस हैं which are based on borrow, these are also same as ADC, SBB। The difference only here is this कि यहाँ पर ADC की जगह हमने SBB लिख दिया। So the syntax is same। देन अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक है अनसाइंड की और एक है साइंड के लिए। तो जब हम अनसाइंड इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं तो हम अनसाइंड यूज कर लेंगे, जब साइंड की बात करेंगे तो साइंड नंबर्स यूज कर लेंगे। बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के केस में साइन नंबर की भी वैल्यू होती है, जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया होगा तो अगर वैल्यू में साइन नहीं लगा है तो इट इज इजी कि हाँ बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव एंड द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। बट जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं साइन का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दोनों नेगेटिव, तो उस चीज़ को भी हमें यहाँ पर माइंड में रखना है कि हम वो साइन नंबर्स को भी यहाँ पर यूज करें। तो उसके लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाली इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। And this instruction will also be can be performed for sorry can be performed for either 8-bit or 16-bit as per the data given in instruction। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें मल्टीप्लिकेशन स्पेस CL दिया है, मल्टीप्लिकेशन स्पेस CX दिया हुआ। तो CL इज गिवन, इट मीन्स कि 8-bit डेटा इज बीइंग मल्टीप्लाइंग, और अगर 16-bit डेटा गिवन है यानी CX गिवन है तो 16-bit डेटा है, तो इट मीन्स कि हम 16-bit डेटा का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड in this instruction the multiplication is always performed with accumulator only। एंड जब हम जैसे हमने CL लिखा हुआ है तो इट मीन्स इट विल बी परफॉर्म्ड विद AL, एंड CX लिखा है तो इट विल बी परफॉर्म्ड विद AL। तो एनी रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन कैन बी यूज्ड इन दिस सिंटैक्स। एंड जब हम मेमोरी लोकेशन लिख रहे हैं तो मेमोरी लोकेशन में फिर अगेन हमारे पास में एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो हम लोगों ने 8086 के लिए स्टडी किया था कि एड्रेस को स्पेसिफाई करने के भी देयर आर डिफरेंट वेज। जैसे कि हमने बताया था आपको कि बेस वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर सकते हैं, या uh, जैसे डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी आइदर 8-bit और 16-bit। तो
ये मतलब यहाँ पर ये चीज हमें दिखा शो करनी पड़ेगी कि जो हम एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस तरह से है। तो इट कैन बी आइदर, जो भी प्रीवियस कॉम्बिनेशन हमने स्टडी किए तो उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकता है, बट वी नीड टू स्पेसिफाई कि हम यहाँ पर 8 बिट का कर रहे हैं या 16 बिट का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, बिकॉज अगर डेटा मेमोरी से हम पिक कर रहे हैं तो हाउ विल यू डिफाइन कि वो 16 बिट करेगा या 8 बिट करेगा। बिकॉज रजिस्टर के केस में तो वी आर ऑलरेडी स्पेसिफाइंग, लाइक जैसे सीएल लिख दिया तो इट मीन्स 8 बिट का ही हो रहा है। बट जब मेमोरी के केस में है तो मेमोरी का जो मल्टीप्लिकेशन या मेमोरी से जो डेटा कॉल किया जाता है वो इसी बिहाफ पे कॉल किया जाता है कि जैसे कि हमने बताया था आपको कि लाइक वी आर हैविंग रजिस्टर मेमोरी एड्रेस 0301 ऑफ लोकेशन। अगर हमें 8 बिट की रिक्वायरमेंट है तो डेटा stored in this location is only transferred. If we require 16-bit data, then the data of two consecutive locations means 0301 and 0302 both will be sent to the microprocessor. So here we need to specify कि जैसे कि हम बाइट पॉइंटर यूज कर रहे हैं या वर्ड पॉइंटर यूज कर रहे हैं। बाइट पॉइंटर यूज कर रहे हैं इट मीन्स कि वी आर यूजिंग 8 बिट, तो एल से मल्टीप्लीकेशन होगा। वर्ड पॉइंटर है मीन्स हम 16 बिट का यूज कर रहे हैं एंड एक्स विल बी यूज। एंड अगेन अब जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 16 बिट्स। अब 16 बिट से ज्यादा होगा तो आप रिजल्ट को किस तरह से स्टोर करेंगे। तो रिजल्ट स्टोरेज का यहाँ पर जो प्रोसेस है इट इज कि मल्टीप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन, इफ इट इज less than 16 bit then it can be stored in AX. if it is more than 16 bit तो ये DX कॉलन AX में सेव होता है, मतलब DX और AX दोनों में सेव होगा। तो मोर देन 16 बिट का रिजल्ट कब आएगा, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग 16 बिट डेटा। तो इन दिस केस ओनली कि व्हेन वी आर यूजिंग 16 बिट मल्टीप्लिकेशन द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन DX एंड AX। एंड स्टोरेज में क्या होगा, अगेन वी नीड टू स्पेसिफाई कि हायर डेटा किधर जाएगा, लोअर डेटा किधर जाएगा, बिकॉज हम रैंडमली स्टोर नहीं कर सकते। बिकॉज अगर रैंडमली स्टोर करेंगे तो MSB एंड LSB विल बी एक्सचेंज। so that is why in this case the higher order 16 bits of the result are placed in DX. so 6 higher order DX में जाएगा and lower order will go to AX। और व्हेन वी आर यूजिंग 8 बिट मल्टीप्लिकेशन तो 8 बिट मल्टीप्लिकेशन जो है वो मोर देन 16 बिट का रिजल्ट उसका नहीं आएगा, तो इट विल बी स्टोर्ड इन ओनली AX वे। दिस इज हाउ मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म। देन फिर अगर हम साइन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो द इंस्ट्रक्शन इज यूज विच इज यूज्ड इज IMUL। it is used for signed multiplication of data। अगेन हम 8 बिट या 16 बिट का रजिस्टर स्पेसिफाई करेंगे या मेमोरी लोकेशन। और मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, आइदर AL से होगा या AX से होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हम 8 बिट का डेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 16 बिट का। 8 बिट मल्टीप्लिकेशन होगा, अगेन AX रजिस्टर में डेटा जाएगा जो रिजल्ट होगा। 16 बिट मल्टीप्लिकेशन होगा तो अगेन DX एंड AX में जाएगा, हायर ऑर्डर DX में, लोअर ऑर्डर AX। अब इन आइदर केस, किसी दोनों में से किसी भी केस में, इफ हायर ऑर्डर हाफ ऑफ द रिजल्ट इज साइन एक्सटेंशन, अगर इन केस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें साइन वैल्यू आ रही है तो इट मीन्स कि वो साइन का 1 बिट एक्स्ट्रा आएगी, वो रिजल्ट से एक्सटेंडेड वर्जन होगा वो उसका। तो इन दिस केस क्या होगा, द रिजल्ट इज साइन एक्सटेंशन ऑफ लो ऑर्डर हाफ ऑफ द रिजल्ट। तो ओवरफ्लो फ्लैग एंड कैरी फ्लैग आर सेट टू 0। तो हम ओवरफ्लो और कैरी फ्लैग को सेट टू 0 कर देंगे बिकॉज दिस इज नॉट द
overflow of data. This is due to the signed bit. ठीक है, जैसे कि हम जब भी एडिशन करते हैं तो एक कैरी जनरेट होता है, और कैरी अगर हमने 8 बिट के दो डेटास को ऐड किया है तो व्हाट विल हैपन, 8 बिट का रिजल्ट आएगा और 1 बिट कोई कैरी की आ जाएगी। तो इन दिस केस हम कैरी फ्लैग को यहाँ पर सेट कर देते हैं। बट जब हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा बिट आएगी दैट बिट विल बी द साइंड बिट। तो इन दिस केस हम उसको एज अ कैरी नहीं लेंगे, दैट इज वाई यहाँ पर कैरी और ओवरफ्लो दोनों को यहाँ पर सेट टू 0 किया गया है, बिकॉज दिस बिट इज रिप्रेजेंटिंग द साइन बिट, नॉट overflow or carry flag. That is why these two flags are set to 0. And if higher order half of the result is not the sign extension of lower order half of the result, तब हम इसको set to 1 कर देंगे। तो हमें ये यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि हम लोअर ऑर्डर हाफ के एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं या हायर ऑर्डर ऑफ द एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, कि लोअर वाले में जो है डेटा एक्स्ट्रा आया है लोअर 8 बिट्स में, या हायर वाले में। तो रिमेनिंग फ्लैग्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग्स विल बी अफेक्टेड हियर। देन अगेन फिर नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे डिवीजन इंस्ट्रक्शन। डिवीजन इंस्ट्रक्शन का भी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है, एंड यहाँ पर भी हमारे पास में साइंड एंड अनसाइंड दोनों का कॉन्सेप्ट है। द इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू डिवाइड अ 16 बिट साइंड नंबर बाय 8 बिट अनसाइंड नंबर और 32 बिट अनसाइंड नंबर बाय अ 16 बिट अनसाइंड नंबर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या प्रोविजन है डिवीजन के लिए कि हम 16 बिट के नंबर को, हम अनसाइंड वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं बिकॉज हम अनसाइंड इंस्ट्रक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो आइदर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 16 बिट नंबर को हम 8 बिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, या 32 बिट नंबर को हम 16 बिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम 32 बिट का डिवीजन कर रहे हैं तो जो डिवाइडेंड होगा इसको हम dx और ax में प्लेस करेंगे, बिकॉज 32 बिट के डिवाइडेंड के लिए हमें दो 16 बिट के रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो dx and ax will be used, and in this case जो डिवाइजर होगा वो हमारा 16 बिट का होगा। लाइक हम डिवीजन कर रहे हैं और हमने क्या किया, यहाँ पे 32 बिट्स लिया, और जो हम डिवाइड करेंगे वो हम 16 बिट से डिवाइड करेंगे। तो दिस 32 बिट डेटा विल बी स्टोर्ड इन dx and ax, and this 16 bit data will be stored in स्पेसिफाइड रजिस्टर या मेमोरी जो भी यहाँ पर गिवन होगी। एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन मीन्स हमने ये तो सब डेटा स्टोर कर दिया, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गए, डिवीजन परफॉर्म हो गया। अब डिवीजन के बाद में फिर रिजल्ट आएगा, हम रिजल्ट को किस तरह से स्टोर करेंगे। इम्पॉर्टेंट केवल यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि हम लोग किस तरह से डेटा को मैनेज कर रहे हैं, कि इनिशियली डेटा किस तरह से कहाँ पर रजिस्टर में स्टोर है, एंड जब रिजल्ट आ जा रहा है तो हम उसके बाद रिजल्ट को कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास में क्या आएगा, डिवीजन में एक क्वोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। तो 16 बिट क्वोशिएंट is placed in AX register and 16 bit remainder is placed in DX। तो अगेन अब जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है वो DX और AX का ही है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्वोशिएंट है वो AX में जाएगा और जो रिमाइंडर आएगा इट विल गो टू द AX। एंड जब हम ये 32 बिट नंबर को 16 बिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इसे 16 बिट ऑपरेशन कहा जाता है, एंड नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। और इन केस ऑफ 16 बिट ऑपरेशन तो ये तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, sorry, in this case, in the case of this 16 bit operation which we studied, if the quotient is greater than this value,
अगर जो क्वेश्चन है वो 16 बिट से ग्रेटर जा रहा है, बिकॉज मान लीजिए हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं और ये डिवाइड होता चला जा रहा है और क्वेश्चन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है एंड 16 बिट से भी ग्रेटर हो जा रहा है। तो इन दिस केस क्या होगा, अ डिवाइड बाय जीरो यानी टाइप जीरो इंटरप्ट इज जनरेटेड। तो दिस इज द डिवाइड बाय जीरो एरर जो हम लोगों ने इंटरप्ट में पढ़ा था, जो सबसे पहली टाइप जीरो इंटरप्ट हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो ये इंटरप्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगी विच विल टेल कि हाँ एक डिवाइड बाय जीरो एरर आई हुई है, विच मीन्स कि क्वोशिएंट इज ग्रेटर देन एफ 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 एफ। एफ 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 का मतलब क्या है कि 16 बिट का जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है वो ये लार्जेस्ट नंबर है 4 टाइम्स एफ। देन फिर सेकंड ऑपरेशन पर आ जाते हैं। सेकंड ऑपरेशन क्या है, सेकंड ऑपरेशन इज कि अगर हम किसी 16 बिट नंबर को 8 बिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इसे हम 8 बिट ऑपरेशन कहेंगे। अब ये जो 16 बिट का डिवाइडेंड है, ये डिवाइडेंड को सिर्फ AX में, अब यहाँ DX की जरूरत है नहीं बिकॉज हमें 16 बिट के डेटा को स्टोर करना है, तो वी विल स्टोर दिस इन AX रजिस्टर। एंड इस डिवाइजर को, ये डिवाइजर हमारा कहाँ होगा, जो यहाँ रजिस्टर स्पेसिफाइड है या मेमोरी स्पेसिफाइड है उस लोकेशन पे डिवाइजर होगा। अब अगेन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन क्या होगा, 8 बिट का जो क्वोशिएंट आएगा इसको क्या करेंगे, AL में प्लेस करेंगे और 8 बिट का जो रिमाइंडर आएगा वो उसको हम AH में स्टोर कर देंगे। तो इस तरह से सिर्फ एक ही रजिस्टर में यानी एक्यूमुलेटर में ही कंप्लीट रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड अगेन एंड ऑल कंडीशनल फ्लैग्स रिमेन्स अनडिफाइंड। अब अगेन, अब क्योंकि हम 8 बिट रिमाइंडर को, सॉरी 8 बिट रिमाइंडर को AH में और 8 बिट क्वोशिएंट को AL में स्टोर कर रहे हैं, तो अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो क्वोशिएंट है वो 8 बिट से ग्रेटर हो जाए। 8 बिट से ग्रेटर होने का मतलब क्या है कि FF से ज्यादा वैल्यू आ जाए। तो अगेन द सेम इंटरप्ट इज जनरेटेड, टाइप जीरो इंटरप्ट इज जनरेटेड हियर। प्रोग्राम एग्जांपल्स तो खैर हम लोग प्रोग्राम्स आगे स्टडी करेंगे ही, तो उसमें भी हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से प्रोग्राम्स में यूज हो रहा है। देन फिर सेम है आई डिवीजन, एंड दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर साइंड डिवीजन। तो हम यहाँ पर अब साइंड को स्पेसिफाई करेंगे। तो साइंड वाला स्टडी करने के लिए क्लास को रिस्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज 2 मिनट्स हैं, तो इन बिटवीन ही क्लास एंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए क्लास, हम इस क्लास को एंड कर दे रहे हैं।